آپ کے علم میں ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے کرپشن، مہنگائی اور موجودہ حکومت کے ظلم اور جبر کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا۔ 24 جون کا وہ دن تھا کہ جب پنڈی میں اور اسلام آباد میں اس تحریک کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد کراچی میں ایک دھرنا ہوا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہم نے کیا۔ ایک جلسہ ہوا جو نیشنل پارک میں عظیم الشان جلسہ تھا، جو کراچی کے شہریوں نے، کراچی کے عوام نے اس بات کا فیصلہ دے دیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور بے نظیر کی حکومت نامنظور ہے، اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد یہ پروگرام بنایا گیا کہ ملک کے تمام صوبوں کے صدر مقام پر احتجاجی دھرنے کیمپ لگائے جائیں، جو مستقل دھرنا لگائیں اور اپنے احتجاج کا مظاہرہ کریں۔ لاہور میں کیمپ کا آغاز ہوا، پشاور میں کیمپ کا آغاز ہوا، اور اب صوبہ سندھ کے صدر مقام کراچی میں سندھ کے باشیوں نے اپنے جذبات کے مظاہرے کے لیے اور حکومت کے خلاف اپنے ان عزائم کے مظاہرے کے لیے آج اس احتجاجی دھرنا کیمپ کا آغاز کیا ہے۔ اس دھرنا کیمپ کے آغاز پر ہمارے درمیان جناب مولانا جان محمد عباسی صاحب، علامہ حسن ترابی صاحب اور نعمت اللہ خان صاحب موجود ہیں جو آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا امیر جماعت اسلامی کراچی جناب نعمت اللہ خان صاحب کو، جو آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ جناب نعمت اللہ خان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ مولانا جان محمد عباسی صاحب، قابل احترام علامہ حسن ترابی صاحب، سیکریٹری جنرل تحریک جعفریہ، اور میرے عزیز کراچی کے جاں بازوں اور نوجوانوں، بے نظیر صاحبہ نے کل اپنے کسی بیان میں یہ کہا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے سے حکومت نہیں جاتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے سے اگر حکومت نہیں جا رہی تو 24 جون کو اسلام آباد کو کیوں سیل کیا گیا تھا؟ 24 جون کو جماعت اسلامی کے پرامن دھرنے پر گولیاں کیوں چلائی گئی تھی؟ 24 جون کو جماعت اسلامی کے 2 نوجوانوں کو راولپنڈی کے اندر کیوں شہید کیا گیا تھا؟ بے نظیر صاحبہ، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان پر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ دھرنا جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی MID کی تحریک نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آج کراچی کے صدر مقام ایمپریس مارکیٹ پر یہ اتنا بڑا دھرنا، اگر میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو پاکستان کے تمام صوبائی دارالخلافوں کے اندر جو دھرنے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا دھرنا یہ کراچی کا دھرنا ہے۔
जमात इस्लामी का धरना है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगा और इसी धरने के नतीजे में बेनजीर साहिबा आप अमेरिका भागने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ये पीपुल्स पार्टी की तहरीक नहीं है, पीपुल्स पार्टी की तहरीक नहीं है जिसमें घर के अंदर बैठकर तहरीकों का ऐलान किया जाता है, जलसों का ऐलान किया जाता है। ये जमात इस्लामी की तहरीक है और इस तहरीक का आगाज इस तहरीक के कायद काजी हुसैन अहमद ने अपनी पीठ पर लाठियां खाकर किया था। तुम कहते हो कि अवाम पीपुल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार इसी कराची शहर में टिकरी ग्राउंड के जलसे के अंदर जूते दिखाकर किया था। अवाम और वो लियारी, जिस लियारी के बारे में तुम्हारे वालिद और तुम कहते हो कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो हमारा हल्का है। लियारी तुम्हारा हल्का था और जूतों से तुम्हारा इस्तेकबाल किया गया था। मेरे अजीज भाइयों, जमात इस्लामी ने ये तहरीक क्यों शुरू की? अपने लिए नहीं शुरू की है। हमने ये तहरीक पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए शुरू की है। पाकिस्तान के गरीब अवाम जो महंगाई से, बेरोजगारी से, अपनी जिंदगी से आजिज आ रहे हैं, उनके लिए ये तहरीक शुरू की गई है। उस करप्शन के खिलाफ, जिस करप्शन में हमारी वजीर आजम, उनके शोहर आसिफ अली जरदारी भी शरीक हैं, उसके खिलाफ की गई है। IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेकर पाकिस्तान के हर शहरी को तुम उस कर्जे के अंदर जकड़ रही हो और उसी कर्जे में से 120 अरब रुपया अपने हवालियों को लुटा दिया। उनसे वो कर्जे वापस नहीं लेती हो। कौमी असेंबली और सेनेट के 90% अफराद लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो तुम्हारे साथ हैं। मैं नारा लगाऊंगा। उन्होंने अवाम का ये दौलत लूटकर बाहर मुंतकिल की है। तुम खुद बर्तानिया के अंदर सरे में अपने लिए अरबों रुपए का महल खरीदती हो। अब तुम्हारे मुंह के अंदर घुमनियां क्यों पड़ गई हैं? बोलती क्यों नहीं हो? जवाब दो। बर्तानिया का महल किसने खरीदा है? कहां से खरीदा है? वो दौलत कहां से आई थी? बर्तानिया में कहां से पहुंची थी? तुम्हारे पास बर्तानिया के अंदर कोई जरिए आमदनी नहीं है। सारी दौलत पाकिस्तान से गई है, पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत है। तुम कहते हो पीपुल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीपुल्स पार्टी में आज तक जिस तारीख को पीपुल्स पार्टी बनी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में, उस वक्त से लेकर आज तक पीपुल्स पार्टी के अंदर इंतखाब नहीं हुआ है। अगर इस्लाम में फहाशी और कुर्बानी का मुजाहरा अगर तुम्हारा ईमान है, याद रखो पाकिस्तान के अवाम का ये ईमान नहीं है। तुम्हारा ईमान मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के अवाम का ईमान मुख्तलिफ है।
तुम कहती हो सदर साहब से कहा गया कि एहतसाबी कमीशन कायम करें। कहने लगे एहतसाबी कमीशन से कोई फायदा नहीं होगा, कौमी असेंबली के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जाएं। कौमी असेंबली के मेंबरान डाकू, लुटेरे, चोर, चुरारी, शराबी, वो एहतसाबी कमीशन का काम करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा यही है। हमसे लोग कहते हैं, कहते थे और कहते हैं कि जमात इस्लामी इंतखाबात के अंदर 3 सीटें जीतती है, कभी 4 जीतती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि तुम्हारा इंतखाबी निजाम, इसके तहत जमात इस्लामी के लोग मुंतखब होकर असेंबली के अंदर नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे इस इंतखाबी निजाम के अंदर चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, चोरी और शराबी पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि दस्तूर की दफा 62 और 63 के तहत उसमें लिखा हुआ है कि कौमी असेंबली के मेंबरान की तारीख क्या है, कौन से लोग कौमी असेंबली के लिए मुंतखब हो सकते हैं। उसमें मेयार दिया हुआ है। हमारा मुतालबा यह है कि दस्तूर के अंदर दिए हुए मेयार पर कौमी असेंबली के इंतखाबात के वक्त उन नुमाइंदों को परखा जाए जो वहां जाना चाहते हैं। और फिर तुम देखना बेनजीर कि कौमी असेंबली के अंदर पीपुल्स पार्टी पहुंचती है कि जमात इस्लामी पहुंचती है। हम जानते हैं कि कौमी असेंबली के अंदर जब तक इन जागीरदारों की, इन वडेरों की, इन सरदारों की गिरफ्त है, कौमी असेंबली के अंदर अवाम के असल नुमाइंदे नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए अवाम के मसाइल भी हल नहीं हो सकते। आज आप देख रहे हैं 50 साल होने को आए हैं पाकिस्तान बने हुए, गरीब तर हो रहा है और अमीर तर हो रहा है। मौजूदा हुकूमत ने हर इदारे को तबाह कर दिया है, पार्लियामेंट को तबाह कर दिया है, पुलिस को तबाह कर दिया है, अदलिया को तबाह कर दिया है। और अदलिया को तबाह करके वो ये चाहते हैं कि अदालतों के अंदर भी अपनी मनमानी कर सकें और अपने मकसद के फैसले करा सकें। लेकिन हमने ये तहरीक शुरू कर दी है। ये तहरीक अदलिया के हक में भी है। हम अदलिया के हुकूक दिलाएंगे और जो कुछ रुकावटें उसके रास्ते में हायल होंगी, उन रुकावटों को इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे। मैं आखिरी बात सदर साहब से कहता हूं। सदर साहब, हमको मालूम है आप पीपुल्स पार्टी के कारकुन हैं। पीपुल्स पार्टी के तुफैल में आप आज सदारत के मनसब पर पहुंचे हैं। लेकिन सदर साहब, फारूक निगारी साहब, आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए दस्तूर का हलफ उठाया है। उस दस्तूर की पासदारी आप करेंगे। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि दस्तूर में दिए हुए आपके इख्तियारात को आप इस्तेमाल करें। हम जानते हैं कि आप गुलाम इसहाक नहीं बन सकते, लेकिन हम ये तो आपसे कह सकते हैं कि फारूक निगारी साहब, खुदा के लिए चौधरी फजल इलाही न बनिए, फारूक निगारी रहिए, सरदार फारूक निगारी रहिए। अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, पीपुल्स पार्टी अब आपको सदारत से ऊपर इसी मनसब पर नहीं पहुंचा सकेगी। आपको इस दुनिया का, इस पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मनसब हासिल हो गया है। अब आप याद रखिए कि आपको मरना है, अल्लाह के हुजूर जवाबदेही करनी है। अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने जब देखा, आप देख रहे थे, आप हुकूमत को खतूत लिख रहे थे, आप समझ रहे थे कि हुकूमत जालिम है, हुकूमत जाबिर है,
हुकूमत डाके डाल रही है, हुकूमत लूटपाट कर रही है, फिर आप आवाम उस हुकूमत से नफरत करते हैं। ये नफरत का मुजाहरा है। इस सदर के अंदर जो हजारों अफराद बैठे हैं इस धरने के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि 250 अफराद आ जाएं, हमारा धरना हो जाएगा, लेकिन ये 250 नहीं, ये हजारों अफराद आज इस धरने के अंदर क्यों आए हैं, क्यों खड़े हैं, क्यों लोग खिड़कियों से सुन रहे हैं, क्यों वहां पुल पर खड़े हैं? इसलिए कि वो बेनजीर भुट्टो से, पीपुल्स पार्टी से नफरत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ हिलाकर जवाब दीजिए कि पीपुल्स पार्टी से आप नफरत करते हैं? पीपुल्स पार्टी से आप नफरत करते हैं? मेरे अजीज भाइयों, आप नारों के अंदर बहुत मसरूफ हो जाते हैं, तकरीर में दखलंदाजी होती है। मैं चाहता हूं कि आपकी ये आवाज भी निकाल दी जाए। मैं नारे लगाता हूं, एक शर्त है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग यहाँ खड़े हैं उन नारों के अंदर सब शरीक होंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब